آج اڈیالہ جیل میں توشخانہ 2 کیس کی کلوزنگ آرگومنٹس کے دوران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج توشخانہ 2 کیس میں پراسیکیوشن نے اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کر لیے اور ہمارے ڈیفنس کے لیے جج صاحب نے کل کی تاریخ دی ہے۔ آج خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کے پی کے میں ٹرانزیشن کے بعد پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ خان صاحب نے کے پی کے میں ٹرانزیشن کے اس پروسیس کے کمپلیشن پہ اور کل کے ووٹ پہ خوشی کا اظہار کیا، اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ خان صاحب اپنے سارے ایم پی ایز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ڈٹ کے خان صاحب کے نظریے کے ساتھ بغیر کسی ایپس اینڈ بٹس کے خان صاحب کے نامنی کو دل کھول کر کے ووٹ دیے۔ خان صاحب نے علی امین صاحب کو بھی اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے جنہوں نے بغیر کسی ایپس اینڈ بٹس کے فوراً خان صاحب کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے ایک نہیں 3 مرتبہ اپنے استعفیٰ دے دیا ہے۔ 2 مرتبہ گورنر کو بھیجا اور 1 مرتبہ فلور آف دی اسمبلی بھی اپنے استعفے کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس بات کی عکاس ہے کہ کے پی کے میں خان صاحب کا نظریہ ہے، کے پی کے میں خان صاحب کا ووٹ ہے، کے پی کے میں خان صاحب کے ایم پی اے اور خان صاحب کے کہنے سے وہی وزیر اعلیٰ بنے گا جس کو خان صاحب منتخب نامنیٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ سارے ساتھیوں نے بغیر کسی گروپ بندی کے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ خان صاحب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹرانزیشن خوش اسلوبی کے ساتھ اور جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ اوتھ لینے کے لیے عدالت کو رجوع کر چکے ہیں۔ ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ 2 پولیٹیکل پارٹی نے بھی پٹیشن فائل کی ہے۔ خان صاحب امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیس جلد سے جلد کمپلیٹ ہو۔ یہ ایوان میں اس پارٹی کا حق ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے۔ خان صاحب نے ذکر کیا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، بزدار صاحب کے بعد پرویز الہی صاحب آئے تھے، مراد علی شاہ صاحب بھی اس طرح آئے تھے۔ اسی طریقے سے نیشنل اسمبلی میں ظفر اللہ جبالی صاحب کے بعد شجاعت صاحب آئے تھے اور شجاعت صاحب کے بعد شوکت عزیز صاحب آئے تھے۔ یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس کہ یہ حق اس پارٹی کا ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے، چونکہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، لہٰذا اس کی قدر کی جائے، اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور یہ پروسیس خوش اسلوبی سے کمپلیٹ ہو۔ اس کے علاوہ آج خان صاحب نے دہشت گردی پہ ذکر کیا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہے جو خان صاحب نے بیرسٹر سیب کو کہا ہے اور علی ظفر صاحب کو کہا ہے کہ وہ بھی تذکرہ کرے۔ مجھے جو انہوں نے ہدایات دی ہے دہشت گردی پہ موٹے باتیں جو خان صاحب نے بتائی ہے میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مرتبہ میں یہ کہوں، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کرتی ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں تنقید کرتا ہوں تو میں ایز اے سیاستدان پالیسی پہ میں تنقید کرتا ہوں کہ کوئی سلوشن ہم نکال لے۔ ہم ہر قسم کے دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہمارے خان صاحب نے کہا ہے فوج بھی میری ہے، آج کے ٹھگاریکل الفاظ میں کہا فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، شہداء بھی ہمارے ہیں، فوج کے شہداء ہمارے ہیں، یہ خان صاحب نے کہا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ پولیس کے شہداء بھی ہمارے شہداء ہیں، ہمیں ان کا قدر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں کے خون رائے گاہ جائیں اور ان کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سویلین کا خون بھی نہ بہے، سویلین میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو۔ خان صاحب نے کہا جب میں تنقید کرتا ہوں تو میں دہشت گردی کو سپورٹ نہیں، میں دہشت گردی کے خلاف سلوشن کے لیے حکومت کی پالیسی پہ میں تنقید کرتا ہوں۔ ساتھ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مرید کے واقعہ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ خان صاحب یہی دہرا رہے ہیں کہ ہر مہذب معاشرے میں آزاد رائے کا حق ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، کسی بھی صورت نہتے لوگوں پہ کوئی شیلنگ نہ ہو، کوئی گولی نہ چلے، لوگ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔
इसके साथ खान साहब ने कहा हमारी जदोजहद जमहूरी जारी रहेगी, इंशाअल्लाह ताला KPK की नई हुकूमत गुड गवर्नेंस पे तवज्जो देगी और अपने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके खिलाफ अपना इस्तेदाद बढ़ाएगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम को एक मिसाली हुकूमत इंशाअल्लाह KPK में हम बना के दे देंगे जी। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट पहले करूंगा कि खान साहब ने अली जफर साहब को भी कहा है और फिर से बैरिस्टर सेब को भी कहा है कि वो भी इसके साथ कुछ अल्फाज ऐड करे और इनको स्पेशल हिदायत दी हैं वो इंडिविजुअली अपने बातों का जिक्र करे। अगर अली जफर साहब पहले करना चाहते हैं या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ने 4 नुकात पेश किए हैं दहशतगर्दी के बारे में। जब बात की उन्होंने कहा अवाम तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। सबसे पहले तो वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और वो चाहते हैं, हर पाकिस्तानी की तरह वो चाहते हैं कि इसका हल हमें ढूंढना है। हमने इसको पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा, जिस तरह गौहर साहब ने भी बताया, कि अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही और पाकिस्तान का हर शहरी, उनके लिए दिल में बहुत जगह है और वो समझते हैं कि आर्मी भी, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं और पुलिस भी, वो अवाम की पुलिस है, अवाम की आर्मी है, अवाम के सिपाही हैं। खान साहब ने ये भी बताया, तीसरी चीज़ बड़ी अहम, उन्होंने कहा कि लेकिन सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए आप दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक सियासी हल भी ढूंढना है। उन्होंने कहा चौथी चीज़ कि मैं सियासतदान हूँ और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का हल सियासत में सियासी तरीके से भी होना चाहिए। आपको एक पूरी पॉलिसी बनानी है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। और उन्होंने कहा जब मैं बात करता हूँ पॉलिसी की तो मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, मैं दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता, मैं बल्कि समझता हूँ कि इसका मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ सियासी हल भी बहुत ज़रूरी है। उसमें चाहे आपको डायलॉग के ज़रिए करना हो, चाहे मुकामी लोगों को अपने साथ मिला के करना हो, चाहे आपको अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मिला के करना हो, चाहे अफ़गानिस्तान के लोगों को मिला के करना हो, आपने हल ढूंढना है और हल जब मिलेगा तो पाकिस्तान की तरक्की आगे चल सकेगी। ये उन्होंने 4 पॉइंट्स जो हैं मुझे बताए थे, जो मैंने आपके सामने दोहराए। जी बैरिस्टर सेब साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बैरिस्टर अली गौहर साहब और बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने जिस तरह की बातें बताई, दो नुकात पर खान साहब ने मुझे भी ब्रीफ किया और कहा कि मैं ये बात करूं। बुनियादी बातें तो इन दोनों साथियों ने कर दी हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि TLP के हवाले से जो तशद्दुद हुआ, जो बहिमाना तशद्दुद हुआ, जो कत्ल गारत की गई, उसकी शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हिदायत भी दी कि आप भी इसके हवाले से एहतजाज करो और एहतजाज में अगर कोई और पार्टी कर रही है उनका साथ दें, खुद भी एहतजाज करें जितना मुमकिन हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है और आईन और कानून की भी खिलाफ वर्जी हुई और इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी हुई है। इस हवाले से तो उन्होंने ये बात की। दहशतगर्दी के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने ये जिक्र किया कि दहशतगर्दी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी ऑपरेशन, मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत पड़ती भी है तो वो बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। यानी बुनियादी जो मैसेज है, जो प्लान है, जो मंसूबा है दहशतगर्दी के खात्मे का, वो सियासी होना चाहिए, जिसमें सियासी लोगों को इंगेज होना चाहिए, सियासी लोगों को लीड लेनी चाहिए और उन्हीं को फोर फ्रंट पर आकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है सियासतदानों का, उन्होंने ख़ास तौर पर उनकी अपनी ज़ात का उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बिल्कुल वफादार हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज को पसंद करता हूँ, ये पाकिस्तान की फ़ौज है। बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी तो फैमिली के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की फ़ौज में हैं, मेरी दुश्मनी फ़ौज के साथ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक एक सियासी पोजीशन का ताल्लुक है तो यकीनन मुझे ये हक़ है पाकिस्तानी शहरी की तरह और पाकिस्तान की आवाम के, करोड़ों आवाम के एक नुमाइंदे और एक रहनुमा की हैसियत से मेरा ये हक़ है कि मैं किसी भी ऐसी पॉलिसी पर तनकीद ज़रूर करूँ जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ या जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो और जिसका नुकसान हो रहा हो इन तीनों चीज़ों को। तो वो उनका ये कहना था कि किसी को ये हक़ हासिल नहीं है, ना हम हक़ देंगे कि वो अपनी पसंद नापसंद या अपनी सोच के मुताबिक, अपने पैमाने के मुताबिक किसी को भी गद्दार डिक्लेयर करे। तो गद्दारी का लेबल देना, गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना, ये किसी का काम नहीं है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
जो एक बड़ी पार्टी है, जो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम की नुमाइंदा पार्टी है, उसके बारे में ऐसे अल्फाज की भी उन्होंने मजम्मत की। उसके बाद उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जहाँ तक ताल्लुक़ है दहशत गर्दी को बज़ौर क़ुव्वत ख़त्म करने का, तो माजी में भी हमने बहुत से तजुर्बे किए, कई ऑपरेशन भी हुए, कई कार्रवाइयाँ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ की गई, कई सालों से ये मामला चल रहा है, लेकिन इसका हल नहीं निकला, इसलिए कि इसका बुनियादी हल सियासत में है, सियासी तरीक़ेकार में है, सियासी प्लान में है, सियासी हिकमत अमली में है। तो सियासी हिकमत अमली को फ़रोग़ देना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि दहशत गर्दी का खात्मा अफ़गानिस्तान के साथ अंडरस्टैंडिंग किए बगैर हो सके। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि अफ़गान हुकूमत को एतमाद में लिया जाए, अफ़गान अवाम को एतमाद में लिया जाए और उनके साथ मिलकर, उनको ऑन बोर्ड लेकर पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है इसका कोई हल निकाला जाए। ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि इसके नतीजे में दहशत गर्दी के वाक़यात और दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ेंगी, जो कि यकीनन अफसोसनाक एक सिचुएशन होगी। उन्होंने यही कहा, यहाँ तक कि उनका ये कहना था कि मैं ये समझता हूँ कि हमें फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी ख़त्म करके फौरी तौर पर डायलॉग करना चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए, ताकि ये जो तलखी पैदा हुई है हालिया झड़पों की वजह से भी इसका फौरी तौर पर ख़ात्मा हो और हम एक पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए अफ़गान हुकूमत को इन्वॉल्व करके दहशत गर्दी का ख़ात्मा करें। तो ये कुछ बातें थीं। फिर आखिर में उन्होंने यही कहा कि जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, KP में जो हुकूमत का ताल्लुक है, यकीनन वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत को आगे बढ़ना है और इसको ये जिम्मेदारी लेनी है कि जो KP में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके हवाले से नई हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में इस अंदाज से हिकमत अमली बनाए कि आवाम का नुकसान भी ना हो, दहशत गर्दी का भी खात्मा हो और ये जो डिसऑर्डर और एक जो है एक एनार्की सी और एक प्रॉब्लम सा बना हुआ है दहशत गर्दी की वजह से ख़त्म हो, ताकि इन्वेस्टमेंट भी आए और ये इलाका और ये खिता जो है खुशहाल हो। साहब एक छोटा सा सवाल है कि जी एक मिनट, साहब ये बताइएगा, मामला ये है कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो कौमी सतह के लेवल के हैं और मुताबिक हुकूमत फौज एक पेज पे है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने चाहिए। PTI का बुनियादी स्टैंड क्या है कि ये ऑपरेशन नहीं होने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी एक वाज़ेह मौका भी आ गया है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है और ऑपरेशन नागुज़ीर है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक से ज़्यादा मरतबा इस मामले पे दहशतगर्दी पे अपना मौक़िफ़ दिया है। आज भी हम वही मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी हर हाल में ख़त्म हो। दहशतगर्दी पे हमने 3 ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थी, मैं आपको डेटे भी दे रहा हूँ। हमने 1 जनवरी 2025 में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की KPK हाउस इस्लामाबाद में, उसका भी प्रेस रिलीज़ आया। उसके बाद CM हाउस पेशावर में भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई जुलाई में, उस पर भी प्रेस रिलीज़ हमने इशू किया। इसी तरीके से सितंबर में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें बाजोड़ के हालात को भी हमने डिस्कस किया। सारे सैनेटर्स, MNAs और MPAs KPK ने KPK हाउस इस्लामाबाद में उन्होंने मीटिंग की, उसका भी प्रेस रिलीज़ इशू हुआ और हमने इसमें बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जो नेशनल एक्शन प्लान बना है उसके मुताबिक इसके आगे प्रोसीड करे। वो तो एक एग्रीड प्लान है जो फर्दर प्रोसीड कर रहा था, उसमें ये भी कैटेगोरिकली कहा गया था कि जहां हो रहा है टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ नोटेबल लोग शहीद हुए, वहां पुलिस वाले शहीद हुए, वहां सिविल सर्वेंट शहीद हुए, वहां लोगों को जो औरतें शहीद हुई, वहाँ मसाजिद पे अटैक हुए हैं, वहाँ ईदगाहों पे अटैक हुए हैं, वहाँ जनाजगाहों पे अटैक हुए, तो इसलिए उसके खिलाफ एक टारगेटेड ऑपरेशन का जो हुआ था उस प्रेस रिलीज़ में उसका जिक्र है। यही हमारा मौक़िफ़ है। हमने एक से ज़्यादा मरतबा अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है और वो जो लिखा हुआ था वो सारे प्रेस रिलीज़ों में मौजूद है, जो अल्फाज उसके यही है। ये बताइएगा कि नौमुंतखब जो वज़ीर आला है उन्होंने अपने पहली स्पीच में कहा है कि अगर इमरान खान को किसी जेल में मुंतकिल किया गया दूसरी जगह तो पूरा मुल्क जैम करेंगे, ये लाइन उनकी है या खान साहब? देखे, हमने पहले भी कहा हुआ है कि खान साहब को किसी सूरत आप इस जेल से दूसरी जगह आप मुंतकिल ना करें। खान साहब को एक ऑलरेडी जो ट्रायल चल रहा है ये एक आइसोलेशन ट्रायल है, ये इवन उन ऑर्डर के खिलाफ है जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे। इस किस्म के ट्रायल मैंने ये कहा था कि हमारे पास इस वक्त जो फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन के, वो 2023 के हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। वो ये है 23 लाख केसेस इस वक्त
लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। 23 लाख केसेस में 8,14,000 केसेस वो क्रिमिनल नोयत के हैं जो पूरे पाकिस्तान में पेंडिंग है। उन 8,14,000 केसेस में 2,70,000 क्रिमिनल केसेस इस वक्त पंजाब में पेंडिंग है। हम ये कह रहे हैं खान साहब का केस उस अंदाज से चले जो 2,70,000 केसेस चल रहे हैं, और जो 2,70,000 केसेस में जिस तरह का आप अक्यूज को ट्रीट कर रहे हैं, खान साहब को भी उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि खान साहब सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। खान साहब इस वक्त दुनिया के मकबूल तरीन लीडर है। खान साहब की इस वक्त 4 सूबों में नुमाइंदगी हासिल है। खान साहब की 2/3 मेजॉरिटी एक सूबे में। खान साहब की MNAs सेनेटर्स इस वक्त मौजूद हैं। खान साहब एक साबिका वज़ीर आज़म है, पर हमने फिर भी खान साहब ने कहा मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इंसाफ आईन और कानून के मुताबिक मेरे केसेस हो, वो मेरे केसेस लगे। हमने कोर्ट को इतना कहा है कि हमारी चाबी से तो कोई दरवाज़ा नहीं खुला कि आप हमें इंसाफ दे सके, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं आप हमें इंसाफ दे। इंसाफ देना आपका फर्ज है और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। PLP के हवाले से खान साहब ने कहा है कि उनके एहतजाज का एक के हवाले से वो हमने जिक्र कर लिए, वो हमने जुम्मे को दोबारा प्रोटेस्ट करने जा रही है, तो PTI इसमें शामिल होगी। क्या कोई इंडिविजुअल रियासत से बालातर हो सकता है? सुहेल अफरीदी ने अपनी स्पीच में कहा कि हमारे लिए रियासत ही इमरान खान है। आप इसमें बताएं कि क्या कोई इंडिविजुअल रियासत देखिए TLP के ऊपर पानी PTI की अच्छा, जानिब से मजम्मत की गई है, इसको कंडेम किया गया है। पानी PTI के दौरे हुकूमत में जो TLP के साथ हुआ उसकी भी वो मजम्मत की है उन्होंने। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी खान साहब का कहना ये है कि कहीं भी सिविलाइज वर्ल्ड में लोगों का ये राइट है कि वो बाहर निकल के अपने इजहार राय का इजहार करें। ये उनको आज़ादी है, आईनी और कानूनी है, कानून के दायरे में रहते हुए। ऐसे मजमे पे किसी सूरत शेलिंग ना हो, किसी सूरत गोली ना चले, आप वाटर कैनन कोई चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए। लोग अपने हक राय के इजहार के लिए निकलते, पूरी दुनिया में निकलते, लिहाजा हम करते हैं। आखिरी सवाल। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। नए वज़ीर आला के लिए इमरान खान ने कोई पैगाम दिया है? नए ख्वाहिशात का इजहार किया है उसके लिए, और इंशाअल्लाह ताला